Colonial rule and pastoral life. Under colonial rule, the life of pastoralists changed dam- dra- drama- dramatically. Their grazing ground shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. Their agriculture stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. How first, the colonial state wanted to transform all grazing lands into cultivated farms. Land revenue was one of the main sources of its finance. By expanding cultivation, it could increase its revenue collection. It could at the same time produce more jute, cotton, wheat, and other agriculture produce that were required in England. To colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agricultural produce. It was seen as wasteland that needed to be brought under cultivation. From the mid 19th century, wasteland rules were enacted in various parts of the country. By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals. These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. Some of them were made headmen of villages in the newly cleared areas. In most areas, the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. So expansion of cultivation in inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. Second, by the mid 19th century, various forest acts were also being enacted in different provinces. This acts, through acts, some forests which produced commercially valuable timber like deodar or sal were declared reserved. No pastoralist was allowed access to this forest. Other forests were classified as protected, and this some customary grazing rights to pastoralists were granted, but their movements uh, were severely restricted. The colonial official believed the grazing destroyed the saplings and young shoot of trees. The shoot that germinated on the forest floor, they had trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from growing. These forest acts changed the lives of pastoralists. They were prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. Even in areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for entry. The timing of their entry and departure was specified, and the number of days they could spend in the forest was limited. Pastoralists could no longer remain in an area even if forage was available. The grass was succulent, and the undergrowth in the forest was ample. They had to move because the forest department permits that had been issued to them now rule there.
lives. The permit specified the periods in which they could be legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. Third, British officials were uh, suspicious who changed in their place of residence every season, moving in search of food pastures from their hints. The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted rural people. They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular field. Such a population was easy to identify and control. Those who were settled were seen as precable and law abiding. Those who were nomadic people were considered to be criminal. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act. By this act, many communists of craftsmen, trade, patrolists were classified as criminal tribes. They were stated to be criminal by nature and birth. Once this act came into force, the community were accepted to live only in notified village settlement. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. Fourth to Fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods, and even on animal. Patrolists had to pay tax on every animal they grazed on the pastures. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in mid 19th century. The tax per head of cattle went up rapidly. The system of collection was made increasingly efficient in the decades between the 1850s and 1880s. The right to collect the tax was auctioned out of contractor. This contractor tried to extract as high a tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the petrolized. Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए। इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगीं और उनसे जो लगान वसूल किया जाता उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके
पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसके आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय सरकार की तब्दील आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतिहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। उस खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि का विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गईं और इस ज़मीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चारागाहों की ही थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगीं। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। इन कानूनों के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाहे के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। उपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चलन से छोटे जंगली पौधों और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नई पेड़ की बढ़त रुक जाती है। वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले निवासियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत था। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छुट्टी दी गई, वहां भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में अनेक प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वह चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलता पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगलों में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक भी नज़र से देखते थे।
वे गांव-गांव जाकर अपने चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। गोमंतकों को अपराधी माना जाता था। 1871 में उपनिवेश सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इन कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। चौथी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों को चरगाहों में चरने वाले एक-एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के माध्यम से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों-दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसका वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वह जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते-आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही वसूलना शुरू कर दिया। हरक चरवाहा को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चरगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनसे कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेट्रोलिज्म? इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? दिस मेजर लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्चर व्हेन ग्राजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड्स। द अवेलेबल एरिया ऑफ pasturated declined. Similarly, the reservation of forest meant that spears and cattle here could no longer freely pasture their cattle in the forest. As pasture lands disappeared under the plough, the exciting animal stock had to feed on where the grazing land remained. This led to continuous intensive grazing of these pastures. Usually nomadic pastoralists grazed their animals in one area and moved to another area. This pastoral movement allowed time for the natural restoration of vegetation growth. When restrictions were imposed on pastoral movements, grazing lands come to be continuously used, and the quality of pastures declined. This in turn created a further shortage of forage for animals and degradation of animal stock. Undeferred cattle died in large number, and
ड्यूरिंग स्केटिक्स एंड फेमिनिस। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। इन चीज़ों की वजह से चरगाहों को गंभीर कमी पैदा हो गई, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरगाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरगाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने निवासियों को जंगलों में पहनने जैसी आज़ादी से नहीं चला सकते थे। जब चरागाह खेती में बदलने लगे तो बच्चे कुचे चरगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चरगाह सदा जानवरों में भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरगाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर भी बंदिशें और चरगाहों के बेशाब इस्तेमाल से चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवर की सेहत और तादाद भी गिरने लगे। जो चारे की कमी और जब तक पड़ने वाली अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या से मरने लगे।